Join your hands. Start chanting of Omkar thrice. Sai Ram. So, Sai Ram to all of you. और अभी आपसे मिश्रा सर मैथ्स वाले कुछ बात कर रहे थे रिगार्डिंग द आर्ट इंटीग्रेशन. यस. सो अंकुश रिमाइंड मी. Okay, after half an hour, we will discuss about it. Ankush. Okay. Yes, sir. Last time I was talking about types of force, and types of force, especially we can categorize the force into two parts. The first one is contact force and second is non-contact force. So we can classify them into two. किस तरीके से? Contact and second is non-contact force. Non-contact. All of you know the meaning of contact and non-contact. How can we say it is a contact force? It means we can say in contact force, a physical touch is important. Yes or no? Yes, sir. Yes, And sir. in second type, non-contact, no physical touch. This is important, isn't it? Yes, sir. यदि हम ये कहें, जिनके कैमरे ओपन है वो मुझसे बात करें, और चलिए अपना हाथ ऐसे रख लीजिए in front of camera, और all of you try to lift pen without touching pen by your hands. Not only by hands, even not by mouth or teeth or lips or legs or foot. Can you touch the pen? Even I am unable to touch the pen because if I have to lift, I need to lift it, I have to touch it. So, okay, relax. I touch it and lift it. What type of this force, beta? Contact. Contact force. Contact force. Contact force. Yes. And now I have a magnet in my hands. Yes, Dakarji, this is the magnet in my hand. And some pins are there, even a little distance away from my magnet. So when I bring the magnet close to the pins, I found all the pins get attracted towards the magnet. I touch it or without touching, pins moves toward the magnet. Without touching. Sir, without touching. So this is a force. Non-contact Magnet. force. Non-contact force. Non-contact force. अगर मुझे आप में से किसी की भी पिटाई लगानी है, volunteers ready? I would like to beat somebody. किसकी पिटाई लगाऊं? हम बैठे हैं यहाँ पर. हाँ चलो आप सब लोग बैठे थे. अखिल से शुरुआत करता हूं मैं. But conditions apply. I can't touch Akhil. So I can't beat him. Yes, sir. If I want to kick a football, if I want to touch the cheek of the Akhil with my hands, I have to touch it. Football has to be touched by my leg, my foot. Then only I can apply force. But all of you know that about the gravitational force. Yes, you are able to see what is this pen?
Yes, sir. Pen. Okay, Pen. and I just release this pen is coming down. So who is attracting this pen? Gravity. 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 Earth exert a pen. Earth exert a force on the pen, even from a distance. This is called gravitational force. आप एक कोई भी चीज उठा लीजिए जो आप उठा सकते हैं, आपके सामने रखी है। एक नोटबुक उठा लीजिए, बुक उठा लीजिए, उठा ली। अब उसके ऊपर एक पेन रख लीजिए, इस तरीके से बैलेंस कर लीजिए। आर यू फीलिंग समथिंग? क्या वेट महसूस हुआ आपको कुछ? नो सर। ओके, कोई एक और चीज रख लीजिए उसके ऊपर, एक और नोटबुक रख लीजिए, या और कोई हैवी चीज है वो रख लीजिए। अब फील हुआ? यस सर। हाँ, Yes, ये जो आपको फील हुआ ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअली व्हाट यू आर फीलिंग नाउ इज द वेट ऑफ दैट बॉडी। ये क्या है बेटा? उसका वेट है। ये मैं आपको और समझा देता हूं कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि दिस इज द वेट। सो व्हाट इज वेट? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर, ये आपके ऊपर कोई बुक रखी है, और यहाँ पर ये जो है ये 5 kg का एक वेट रखा हुआ है उसमें, एंड यहाँ से आप उसको फील कर रहे हैं। ओके, सो ये जो 5 kg का वेट यहाँ रखा हुआ है, ये हमको इस डायरेक्शन में फील हो रहा है बेटा, नीचे की तरफ इसका वेट फील हो रहा है, बिकॉज Yes, sir. बिकॉज अर्थ एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational. ये डाउनवर्ड्स है, लेकिन हमने इस बुक को पकड़ा है जिसके ऊपर ये वेट रखा है, तो हमने क्या किया? वी आर नॉट अलाउिंग दिस 5 kg वेट टू कम डाउनवर्ड्स। नीचे आने से हमने उसको रोक लिया है। सो वी आर एक्सर्टिंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, and this gravitational force is in downward direction. So we are feeling it heavy because weight of any body is the force exerted by the earth. किसी भी चीज का वेट क्या होता है? The weight of any body is the force exerted by the earth on its body. अगर मैं किसी बच्चे को गोदी में उठा रहा हूं तो वो मुझे भारी लगेगा, बिकॉज उस बच्चे के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। So the definition of weight is clear, beta. What is weight? Weight is itself a force which exerted by earth gravitation, earth on it. ठीक है? ये तो जहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहता है वहां पर हमको वेट कम फील होता है। Wherever gravitational force is more, we feel greater force. So muscular force is a contact force. Rub your palms. अच्छा, now rub your palms. Are you feeling rubbing when your palms are at a distance? No, sir. नो So सर। what is frictional force? Contact or non-contact? Sir, contact force. Contact force. Contact. Okay, and very important point regarding the contact force. एक बात मैं आपको बताऊं बेटा, जहां फोर्स लगता है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is very important to note. Yes. ये आप देखिए कि ये एक आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हम इसको फोर्स लगा रहे हैं। दिस इज द फोर्स, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ए, और यहाँ फोर्स लगाएंगे तो बॉक्स ये कहाँ चला जाएगा? अब बी पर। यस, सो दिस इज द फोर्स Yes, sir. एफ। तो फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ हुई? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
जिस डायरेक्शन में फोर्स था उसी डायरेक्शन में चीज डिस्प्लेस हुई? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, अब sir. Yes, sir. मतलब एक चीज आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोथ आर सेम। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. मैं जरा गेट बंद करके आता हूँ, बहुत शोर हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ये तो देख लिया, मान लीजिए कि आप बैठे हुए यहाँ पर, अंकुश बैठा हुआ है सामने की तरफ देख रहा है और पीछे से उसका छोटा भाई आया और धक्का मार के चला गया, तो अंकुश किस डायरेक्शन में जाके झुकेगा, पीछे या आगे? Sir, आगे. आगे. क्योंकि आगे. उसके भाई ने कहा मारा था उसको? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ही अप्लाइज फोर्स इन फॉरवर्ड Yes. डायरेक्शन। तो अंकुश की बॉडी में Yes. जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इट मींस displacement and applied force both are in the same direction, but what in the case of friction, friction में क्या होता है देखिए आप, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है उसके ऊपर, ये बॉडी इधर जा रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर रहेगा? इधर Sir, इस रहेगा, डायरेक्शन में. अपोजिट। Yes, sir. यस, मतलब फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। आप यहाँ ग्राउंड पे चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं सड़क पे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? Sir, opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये डायरेक्शन ऑफ बॉडी डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? दिस इज क्लियर और Yes, नॉट? sir. हाँ, Yes, sir. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट की Sir? डायरेक्शन अपोजिट होती है, अदरवाइज इन ऑल द केसेस डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। एनी डाउट? यस बेटा। सर, सर ये आपने अभी बताया कि सर अगर हम राइट साइड चल रहे हैं तो फोर्स अपोजिट साइड लगेगा, तो सर ऐसा नहीं, क्यों होता है? आप ये देखो, ये मेरा हाथ है आपके सामने रखा हुआ है, मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं बेटा। क्या इस समय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या नहीं है? No, sir. नहीं है सर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब आता है? व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द अदर। तो ये मेरी बॉडी इधर जा रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये बात कह रहा था मैं कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आप लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं? Yes, sir. कभी कभार. कभी कभार करते हैं, तो बिना टच किए उसको वेट को उठा लेते हैं क्या ऐसा जादू करके? No, sir. आबड़ा का डाबड़ा एंड गेट अप इन द मॉर्निंग। लेकिन बस मैं ही, इवन आई कैन आस्क एनीबॉडी, देखो मैं अभी मोदी जी स्टैंड अप, ये दिस इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, सिट डाउन। I change the position of Modi ji without contacting. This is the different thing. उसको इससे रिलेट मत करिएगा, ठीक है? So contact force, frictional force is contact force. Okay. Do you know about the this non-contact force, magnetic force, Yes, sir. gravitational force, Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? अच्छा, जल्दी से घर से अंदर से एक कॉम लेके आइएगा, कॉम, कंगा लेके आइए। अंकुश थोड़ा उठ जाया कर, चिल्लाता रहता है वहीं से, थोड़ा जा उठ के।
हाँ, अब एक छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, पेपर के पीसेस करके रखिए सामने। छोटे छोटे पेपर के पीसेस कर लीजिए। बिल्कुल छोटे छोटे। और जितने लोग ले आए हैं सारे के सारे कैमरा ऑन करिए। अखिल, यस सर। ओपन क्या योर करना कैमरा। पेपर के पीसेस करने के बाद यस, क्या करना है? रख लीजिए पीसेस सामने। सर कंघी सर क्या पे करना है उसमें? आप ऐसे से करवा के ऐसे थोड़ा थोड़ा शांति करो। सभी लोग कैमरा ओपन करिए जरा फटाक से। अंकुश, चहेत, प्रिंस, ऋषिका, संजय, अनिकेत, करण, सत्यम, आर्यन, कृतिका, पलक, मनु। करण तो भाग गया। छोटे छोटे पीसेस कर लिए पेपर के? कर लिए? सर उसको रख दीजिए पेपर के पीसेस को। यस सर। अब थोड़ा सा कॉमिंग करिए, उस कॉमिंग से, कंघे से कॉमिंग करिए। करिए, बढ़िया। सर तेल भी लगाया। कोई बात नहीं, करिए तो सही, अच्छे से करिए। भार्गव जी करो ना, मनु दीदी करो बेटा। हाथ से कर रहा है भार्गव जी। जिसके पास कॉम नहीं है वो No, इसके sir. लिए अब पेपर, अब कॉम को तुरंत पेपर के पास लाओ। चिपक गए? नो सर सर स्केल से ट्राई करें। नो सर। यस सर ऑयल से ऑयल सर वो ऑयल होता है बालों में जब नो होता सर, है। मेरा हो गया थोड़ा सा, थोड़ा सा हुआ था। हो गया ना? तो मेरा एक्चुअली ड्राई है। सर थोड़ा थोड़ा हुआ यस सर हो गया। तो मेरा भी थोड़ा हाँ, थोड़ा हो थोड़ा गया। थोड़ा होने दो। देखिए, हाँ, वेरी गुड। आप लोग कंघा नहीं है, कॉम नहीं है, तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ स्केल, प्लास्टिक स्केल। स्केल को ऐसे अब मेरा रखेंगे। भी हुआ। अब मेरा भी हुआ। गुड 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 गुड। ये देखिए, मेरा तो ये पेन से हो रहा है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सर थोड़ा सा ही हो रहा है। देखिए, ये आपको पेपर दिख रहा है? मुझे देखिएगा जरा। पेपर दिख रहा है बेटा? क्या मेरा नहीं? यस सर। यस अरे सर। पेपर को, अब देखिए इस पेपर को। यस सर, सर हो रहा है, सर हो रहा है। है। सर हो रहा है। सर नहीं हो रहा। सर हो रहा है सर, स्केल से होता है। सर हो रहा है। ये देखिए, अपने आप डिस्टेंस से आता सर है। एक पेपर चिपक गया सर स्केल पे। यस। और मैं आपको छोटे छोटे पेपर करके दिखा देता हूँ। छोटे छोटे पीसेस से दिखाऊं? आपने शायद बहुत बड़े बड़े पीसेस ले लिए होंगे। मैं दिख रहा हूँ आपको? यस सर। अच्छा दिख रहा हूँ? बढ़िया। ये आपको पेपर दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ये देखिए, ये आ गया कि? यस सर। चलो दोबारा कर। यस सर। ये देखो, ये सब चिपक के आ गया। सर अगर हम एकदम फाइन फाइन वो भी हो जाती है। हाँ, पलक दीदी बोल रही है लगता है। यस ये सर। देखो बहुत सारे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अ फोर्स विच इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। What is this called beta? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इट कैन बी एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये क्या हुआ बेटा, मैं आपको किसी दिन और डिटेल में समझाऊंगा इसको।
कि ड्यू टू रबिंग, अच्छा कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई स्पेशली अभी विंटर में स्वेटर उठाते हैं तो यू हर्ट द साउंड चिट 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 चिट, यस यस सर। सर। या कभी चेयर पे बैठते हैं और कोई हमको टच करता है तो एकदम से करंट लगता है। यस सर। किस किस को लगा अभी तक? सर मुझे बहुत बार लगा है। सर और मुझे- इतनी तेज लगता है ना। अब ये स्वेटर हम लोग सुबह से पहने हुए हैं, ये जो आप ब्लैक स्वेटर देख रहे हैं ना, ये सुबह से पहने हैं। अब घर जाके इसको रिमूव करेंगे तो ये दिन भर फ्रिक्शन हो रहा है बेटा, दिन भर फ्रिक्शन हो रहा है बॉडी से, शर्ट से, तो इसमें Yes, एक चार्ज आ जाता है, इसमें एक चार्ज आ जाता है, और जैसे हम स्वेटर उठाते हैं निकालते हैं, ये चार्ज ब्रेक होता है, और कई बार आपको लाइट सी भी दिखाई देगी अंधेरे में, बिल्कुल स्पार्किंग जैसी लाइट दिखाई देती है। दिखाया आपने, महसूस किया है कभी? यस सर, देखा है। हाँ, ये सब हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सब किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हो रहा है। सर फिर चेयर पे क्यों होता है? चेयर पे भी तो हम बैठे हैं, तो डांस कर रहे हैं तो फ्रिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? कभी हम ऐसे बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, तो हमारे, अच्छा हमारी बॉडी, ये जो हमारे क्लोथ है, ये कॉटन के क्लोथ तो है नहीं बेटा, ये मिक्स्ड है, पॉलिस्टर है या सिंथेटिक मटेरियल के बना। सर पॉलीकॉट। हाँ पॉलीकॉट है, सिंथेटिक मटेरियल के, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फंक्शन में आ जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। अंडरस्टूड बेटा? एनी डाउट? यस सर। नाउ अबाउट द प्रेशर। तो पहले हम लोग सर कुर्सी पे किसी को बैठा देते थे, फिर सर कपड़े से कुर्सी को मारते थे, फिर सर कोई छूता था तो करंट लगता था। वेरी गुड, यही तो है जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा। ये जो आप मजाक मजाक में करते थे ना, ये भी साइंस था, लेकिन पता नहीं था, आज आपको पता चल गया है। आप बहुत देर ऐसे चेयर पे, प्लास्टिक चेयर पे बैठे रहते हैं, तो प्लास्टिक चेयर पे बैठे रहते हैं, और जैसे मैंने किसी से पेन मांगा तो उसने दिया, जैसे फिंगर टच होती है वैसे ही एकदम से करंट लगता है। अच्छा ये करंट ऐसा नहीं रहता है कि हम उस बंदे से ऐसे चिपक के रह गए, बॉडी कांप रही है, करंट लग गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रणव, प्रणव प्रधान, अच्छा आर्यन बेटा, सर वो नहीं है मीटिंग में। यस सर। समझ में आया? यस सर आया। कृतिका, कृतिका, मनु, यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। ऋषिका, मैं जब भी कोई चीज पूछता हूँ ना, हाँ, कहाँ सो रही है क्या बेटा कि जाग रही है? नहीं सर। सो रही है? सो रही है क्या? नो सर। अच्छा क्या कर रही है बेटा, चल रही है कहीं? नहीं सर, मैं तो बैठी थी। नहीं बैठी थी, झूठी। सर सच्ची में बैठी हूँ। कैमरा ऑन कर। कहाँ से आई थी, दौड़ के आई अभी? नो सर। ओके, मैं किसी भी दिन अपना मोबाइल लेके आपके घर के आसपास से क्लास लूंगा, देख लेना। एक दिन जेपी में जाके, एक दिन साडा में, एक दिन रावगढ़ में। जेपी में हुई नहीं अभी। कहाँ है तू? सर ओरई में हूँ मैं, अब दादी के घर। तो जब भी तेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो बहुत दूर है ना। देख हमारी नियति बिल्कुल पास में बैठी हुई है, निनाद साहब पास में बैठी है ना नियति? तो चलिए, प्रॉब्लम की वजह से मैंने 2-3 मिनट लेट क्लास ज्वाइन कर पाई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी साहू जी भी आ गए, मयंक साहू। चलिए अब आता है प्रेशर।
अच्छा, व्हाट इज प्रेशर? सर मैं Yes. है सर प्रखर सर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड Acha, प्रेशर okay. When teacher asked some questions, then we said a lot of, or teacher gave lot of homework. Then what we said, अरे this too much pressure, बहुत pressure. Yes, sir. When Papa gave, Mummy asked to do many work at home, and we have to finish our study also. So what we said, even your father many times said कि काम का work pressure. मम्मी बोलती काम का बहुत प्रेशर है, घर में भी काम करो, बाहर भी काम करो, समझ में नहीं आता क्या करो. Is this pressure and that pressure both are different? Yes, sir. Yes, यस sir. सर Yes, Yes. sir. Yes, sir. So very simple word, in very simple words we can say force per unit area is called pressure. Force per unit area it is called pressure. तो हम इसको किस तरह, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है बेटा, ये समझ लीजिएगा, ये आपको 12th तक काम आएगा. अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइएगा. ओके. Yes, sir. Force per unit area, you are able to see board? यस Yes, सर sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So Yes, sir. pressure is equal to force upon area. इसको कहते हैं, डेफिनेशन देंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया is called, what is it called? Pressure. yes, sir. Pressure. सर तो ये अब डेफिनेशन है. हाँ बेटा, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. ओके. Okay, sir. अब एक चीज आप देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? द न्यूटन Newton. वेरी Sir, गुड. Newton. Sir, Newton. Newton. एंड व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एरिया? Meter per square. मीटर. Meter. मीटर पर मीटर स्क्वायर स्क्वायर. And the symbol of Newton is N and meter square is this one. So Newton square. per meter square is the unit of pressure. ठीक है बेटा? हेलो. Yes, sir. अच्छा. Yes, sir. Yes, sir. When 1 Newton force applied on 1 meter square area, the pressure is 1 Pascal. 1 Pascal कैसे डिफाइन करेंगे हम? When 1 Newton force is applied on 1 square meter area, the exact pressure is called Pascal. तो ये जो डेफिनेशन है, ये पास्कल की डेफिनेशन होगी, या हम कह सकते हैं इसको सिंपल वर्ड्स में 1 Pascal Meter per square meter. इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये भी यूनिट होती है और पास्कल भी यूनिट होती है प्रेशर की. अंडरस्टूड? एनी डाउट? यस सर ओके. No, sir. नो No, सर sir. अच्छा, ये देखो एक बहुत खास बात बता रहा हूं मैं आपको. ये हो गया प्रेशर, यहाँ लिखता हूं, ये प्रेशर, ये हो गया फोर्स, ये एरिया. अब मुझे बताइए, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा. वेरी गुड. When area increases, pressure reduce, and when area reduce, pressure इंक्रीज Increase. ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो सब लोग sir. फिर से कैमरा ऑन कर लो, बहुत अच्छे से बताता हूँ ये बात. चलो पेन तैयार रखो, रेडी विथ योर पेन. ठीक है, इस पेन का पॉइंटेड हिस्सा निकाल लीजिए, रिफिल ऑन हो वैसा निकाल लीजिए, और ऑन कर लीजिए पेन. ऐसा हाथ करिए, थोड़ा सा इसको ऐसा दबाइए, हल्का सा,
दर्द हुआ? यस सर। ओके। अब Yes, इसको अपोजिट साइड से करिए, अपोजिट साइड से करिए जहां का एरिया ज्यादा हो। अब उसी उतनी फोर्स से दबाइए। अब दर्द हुआ? नो सर। नहीं हुआ। तो सर उससे ज्यादा में भी दबा रहे हैं तो भी नहीं हो रहा था। हाँ, अभी ये जब आपने पॉइंट से दबाया था तो इसका एरिया कम था और इसका एरिया ज्यादा हो गया। तो जब एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा हुआ और जब एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया। कम हो गया। ठीक है। अब किसी के पास थंब पिन रखी हुई है क्या? मैं लाता हूँ थंब पिन। आपके पास है थंब पिन? सर देखती हूँ। अरे राम, ये देखिए, ये थंब पिन दिख रही है आपको मिश्रा जी? ये भार्गव जी दिख रही है? दिख रही है ना? अच्छा, इसको हम बोर्ड में लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे? जो इसका ब्रॉडर पार्ट है उसको प्रेस करते हैं ना, दबा कर। ऐसे यस press सर। कर- जैसे ये है, इसमें लगाना है तो इजीली प्रेस कर दी मैंने। ठीक है। यस सर। अब नियति एक काम करेगी बेटा, ऐसे प्रेस कर सकती है? नो सर। क्यों? सर वो चुभेगी। चुभेगी? सर उसका एरिया कम है। एरिया कम है। ये जो ब्रॉड हिस्सा है, ब्रॉड पार्ट ऑफ दिस थंबपिन हैविंग वाइड एरिया, ज्यादा एरिया है इसका, तो Yes, उतना ही फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर कम लगेगा एंड इजीली इट विल इंसर्ट। और इधर Yes, लगाएंगे तो ज्यादा एरिया है, यहाँ कम एरिया है तो प्रेशर ज्यादा लग जाएगा, तो ये उधर तो नहीं घुसेगा, हमारे हाथ में घुस जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास आपके स्कूल बैग्स भी हैं? अब तो बहुत दिनों से स्कूल बैग यूज ही नहीं किया आप लोगों ने, कि किए हैं? नहीं किए। नो नहीं किए, करना है? नहीं करना। नो सर। बैग किसके पास करना है? बैग किसके पास रखा है आसपास बैग? जल्दी लेके आ बैग, जिसके पास बैग रखा है। ढूंढना पड़ रहा है। भार्गव जी को टाड़ पे रख दिया, छत पे रख दिया। नो नियति के सर, पास है? बिस्तर के अंदर। हाँ, लेके आओ। अच्छा, नहीं ला पा रहे, कोई बात नहीं। आप देखिए, जो सर शोल्डर पिकनिक बैग है। जो शोल्डर पे हम उसको हैंग करते हैं, लटकाते हैं, वो वाला पार्ट ब्रॉड होता है ना बेटा? यस सर। हाँ, और अगर हम उसको उंगली पे लटकाएं पतली स्ट्रिप से तो वो ज्यादा लगेगा हमको, और यहाँ कंफर्टेबल हैंग कर सकते हैं ना, तो इट इज मोर एरिया सो दैट बैग एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन आवर शोल्डर्स। इज इट क्लियर? इसी Yes, sir. तरीके से देयर आर सर लॉट्स आपको ऑफ डिस्कशन करना था सर। बस लास्ट पॉइंट, it is so many examples are there, you can go through in your book to understand, to know, to learn the relationship between force, pressure and area. Is it clear? Okay. Yes, Now sir. I am reading some of the applications जो आपको देखना है। Why school bags have wide strips? Straps उसके wide होते हैं। Yes, नियति? सेकेंड, आपके घर में नाइफ है सभी के यहाँ? यस तो सर। मम्मी जो भी काटना होता है वो किस साइड से काटती है? जो ब्लंट हिस्सा है उससे काटती है या जो शार्प होता है उससे काटती है? Sir, sharp. शॉर्ट साइड से। शार्प। So why a sharp knife cuts better than blunt knife? इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। Why the tip of the needle is sharp? आपको इंजेक्शन लगा है कभी? यस सर, बहुत बार। यस सर। अभी तो वैक्सीन भी लगेगी, तो जहां से वो एंटर होता है वो बहुत शार्प होता है कि नहीं? यस सर। सही होता है इसका। ताकि अच्छे उसकी से। जगह इतना इतना मोटा घुसाया जाए तो
तो सर पूरी दवाई फैल जाएगी। दवाई फैल जाएगी और ये अंदर घुसेगा तो आपको घाव कर देगा, वाउंड कर देगा, वो इंसर्ट नहीं होगा। So by the tip of the needle is sharp, and there are so many other examples, illustrations related to pressure. आयरन नेल। चल, आयरन नेल भी आता है। चलिए, मैंने क्या बोला था आपको कि क्या करेंगे हम डिस्कशन? आर्ट इंटीग्रेशन। हाँ, क्या टॉपिक क्या है बेटा? इंटीग्रेशन सर पता नहीं सर आपने बताया नागालैंड नहीं। सर पता नहीं। अरे चैप्टर बताया होगा ना कोई? सर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। अच्छा, तो ये बोलो ना, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो देखिए, सर वो तो मैथ्स वाले सर ने बताया। अरे सर का है ना? बेटा मैथ्स में ही सब कुछ ऐड करना है, मैथ्स से ही साइंस ऐड करना है, मैथ्स में हिंदी इंग्लिश सब करना है। आगे समझना। तो हम साइंस का ग्राफ लास्ट ईयर पढ़े थे बेटा, यस सर। Yes, sir. यस सर। और हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। चलिए ठीक है, आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूं, हम बार ग्राफ भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है? सर मेरे पास अभी 7th की बुक है। अरे रुक तो जा बेटा। सर मेरी बुक किसके पास? अरे मेरे पास भी बुक है, डोंट वरी अबाउट द बुक, ठीक है? मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि कौन कौन से हम ग्राफ्स को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बार ग्राफ तो उसमें भी रहेगा, हमारे को थोड़ा सा साइंस का इंक्लूड होना चाहिए ना। तो लाइन ग्राफ। हाँ, लाइन ग्राफ भी करेंगे, बार ग्राफ भी करेंगे, पाई चार्ट भी करेंगे, टैली मार्क्स, ये तो मैथ्स में आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि अच्छा, वो जो लॉ ऑफ कूलिंग, ये टाइम के साथ कैसे सर भी बता रहे थे, हीट के बारे में मैं आपको बता दूंगा इससे, ये कैसे समय के साथ। अच्छा, जैसे मैं आपको, चलो वो हम ये भी कर सकते हैं। हाँ देखो जरा, मुझे बोर्ड पे देखना बेटा, मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये वाला बोर्ड नहीं, मैं ये जो हाथ में बोर्ड है वो शेयर करता हूँ। हाँ, ये एक आइडिया आ गया दिमाग में। ये बोर्ड दिख रहा है बच्चों को? Yes, sir. यस सर दिख रहा है। ये देखिए, अब इसमें ये y एक्सिस और ये x एक्सिस हो गई, ठीक है? ये हो गया स्पीड, ये हो गया टाइम। टाइम। ये कौन सा ग्राफ आ गया? कांस्टेंट स्पीड। वेरी गुड। सर कांस्टेंट। स्पीड, टाइम, इसमें क्या हो रहा है? नॉन कांस्टेंट। Sir, सर नॉन कांस्टेंट। non-constant. ये और ये अलग अलग के स्पीड टाइम ग्राफ है ना? ठीक है। आप यस सर। फर्स्ट में देखिए, यहाँ स्पीड नहीं बढ़ रही है, फर्स्ट में कांस्टेंट है स्पीड, है ना? यहाँ स्पीड डाउन हो रही है, यस सर। स्पीड डाउन हो रही है। यस सर। यहाँ स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, और यहाँ Yes, एक sir. यस सर। एक जैसे, यहाँ पर को एक ही जैसे रेट से स्पीड बढ़ रही है, इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड चेंज हो रही है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा बेटा? यूनिफॉर्म। बाकी यूनिफॉर्म मोशन। बाकी ये Uniform. सारे Non-uniform. बाकी ये सारे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये तो मैंने स्पीड का किया।
ये देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं पोजीशन, पोजीशन एंड टाइम के बीच में खींचे। ये पोजीशन हो गया और ये टाइम हो गया। ये बताइए, ये बिल्कुल ऐसा स्टेट, तो बॉडी चल रही है या रुक रही है, रुकी हुई है? सर नहीं चल रही। नहीं चल स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ठीक है, हम इसको सब बच्चे ये इसी बेस पे हमारा एक कोई सिचुएशन आप सभी लोग कनेक्ट करेंगे और वो इसको इससे ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर वो हमें पीपीटी Yes, में sir. प्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ, पीपीटी में कर लीजिए। अब वो पीपीटी आप बोर्ड पे बना लीजिए अपने कंप्यूटर की हेल्प से, या आप पेपर में बना के फोटो खींच के अपना पीपीटी पे लगा दीजिए। ठीक है, यस सर। ओके। शांति पाठ। और किसी को कुछ पूछना है तो मुझे फोन लगा लेगा। ओके। यस सर। शांति शांति शांति। साई राम। साईराम सर, थैंक साईराम सर, थैंक यू। थैंक यू सर। साईराम सर, थैंक यू सर। साईराम सर, साईराम सर, थैंक यू सर। साईराम सर। साई राम बेटे, साई राम।